डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ICMS, जो कि रेलवे आईटी का एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम है। दैट इज इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज वेरी वास्ट प्रोग्राम ऑफ Indian IT systems. Okay, so we will see important modules and the integration, whatever other apps which are integrated with the ICMS, that also we will see. Okay, so let us see one by one. This screen, ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, माइलस्टोन ऑफ ICMS इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम के माइलस्टोन्स, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस, ये मोबाइल ऐप या वेबसाइट्स हैं, तो मोर देन 20 एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट किया गया है ICMS के साथ. जैसे FOIS को इंटीग्रेट किया गया, COA कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, देन CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, CMM, इस तरह से बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, मोर देन 20 एप्लीकेशंस आर इंटीग्रेटेड विथ ICMS. और टर्मिनल्स कितने मैनेज कर रहे हैं? 400 प्लस, मीन्स मोर देन 400 टर्मिनल्स आर इंटीग्रेटेड अंडर ICMS. और जो हेल्पलाइन है, दैट इज हेल्प डेस्क, इज वर्किंग 24/7, मीन्स 24 घंटे, ऑल डेज they are available for the public, okay, and customers. So we will discuss in detail about the ICMS and other applications related with ICMS. So आपके लिए बहुत ही useful रहेगा. Okay, then before starting the lesson, here one small appeal is there, that if you want to support voluntarily, यदि आप voluntarily support करना चाहते हैं हमारे कार्य को, तो माई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781. Thank you so much. So let us say one by one. Here let us understand ICMS. That point number one is Indian Railway run more than 10,000 passenger carrying trains on average, like Duranto Express, Rajdhani Express, Shatabdi Express, other mail express, superfast trains, passenger trains and suburban trains, etc. Okay, so daily our average is so high. Then number two, Indian Railway carries about 25 million. 25 million means it is 2.5 crore passengers on originating basis every day over its vast network. So 2.5 crore per day is the average passengers that we carry daily. So it is a very big figure. Okay. So for managing all these things, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर और जो टेक्नोलॉजी चाहिए, that all has been brought by Chris in the form of ICMS. Point number three, ICMS has been developed to computerize the whole coaching operations on Indian Railway. जो कंप्लीट यात्री गाड़ियों का जो ऑपरेशन है, संचालन है इंडियन रेलवे में, उसको कंप्यूटराइज करने का एक प्रोग्राम है एंड हैज डिफरेंट मॉड्यूल्स. और ये डिफरेंट मॉड्यूल्स से कनेक्टेड है. ये मॉड्यूल्स में एप्लीकेशंस टू कैटर रेलवे रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज. जो डे टू डे हमारा संचालन का कार्य है उसको मैनेज यानी प्रबंधन करना है. देन मेंटेनिंग कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स. अब आजकल जो पेपर के रिकॉर्ड्स हैं, दे आर नॉट इन यूज. अभी पूरा all the record is maintained in the computer of various events. जो हमारा
daily punctuality, weekly punctuality, monthly punctuality record, or any other unusual records, monthly, weekly, annual, half yearly, all are maintained in the system only, in the computers only. And functionalities monitoring and management of passenger carrying vehicles. PCV means passenger carrying vehicles and other coaching vehicles and passenger locomotives. So this ICMS is capable of managing the locos used for passenger trains and generation of MIS. MIS means Management Information System reports for managerial applications. So MIS reports means it is used by the supervisors and higher officers to manage the coaching operation. Okay. It is used, this ICMS is used to ensure optimum utilization of resources. So that another benefit it is. Then ICMS comprises of various modules as under. Here some important modules name is given. One is PAM, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोचिंग ट्रेन ऑपरेशन में पंक्चुअलिटी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्चुअलिटी है यात्री गाड़ियों के लिए. तो उसको एनालिसिस और मॉनिटरिंग करने के लिए, एनालिसिस का मतलब कहाँ कमी रह गई और हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं या किस गलती से ऐसा हुआ है, और मॉनिटर का मतलब उसको देखभाल करना. तो उसके लिए जो मॉड्यूल है दैट इज PAM, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग. हम आगे की स्लाइड्स में इन सभी मॉड्यूल्स पर भी शॉर्ट नोट आपको देंगे इसमें. ओके, विच यू कैन कीप इट एज रिकॉर्ड फॉर योर स्टडी पर्पज एंड अपकमिंग LDC एग्जामिनेशन. नंबर 2, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऑलरेडी हम लोग क्वास पे डिस्कस कर चुके हैं. क्वास इज आल्सो वन मॉड्यूल इंटीग्रेटेड विथ ICMS. देन नंबर 3, मास्टर डाटा. मास्टर डाटा इज आल्सो वन मॉड्यूल. नंबर 4, MIS रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स. देन नंबर 5, यूटिलिटी कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट, CMM. सो एक यूटिलिटी मॉड्यूल है ये, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, CMM सिस्टम जिसको बोलते हैं. पायलट मॉड्यूल हैज आल्सो बीन डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ ICMS प्रोजेक्ट. यानी कोच मेंटेनेंस का जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पैसेंजर ट्रेन्स की कोचेज है, उसका मेंटेनेंस को भी इंटीग्रेट किया गया है CMM के द्वारा. ओके, इस पर हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे आगे. और भी मॉड्यूल और एप्लीकेशंस हैं नेक्स्ट स्लाइड में. दैट इज नंबर 5, ICMS मॉड्यूल्स आर फर्दर इंटीग्रेटेड विथ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिस्टम्स. ये जो ICMS के मॉड्यूल्स हैं जो आपने देखा, जिस पे शॉर्ट नोट हम आगे की स्लाइड में देंगे, सो वो फर्दर और भी इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, उनके द्वारा भी इंटीग्रेट किए गए हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं. जैसे नंबर 1, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, COA, जो सेक्शन कंट्रोलर्स और चीफ कंट्रोलर्स ट्रेन मैनेज करते हैं कंट्रोल ऑफिस में, सो वहाँ COA से इंटीग्रेटेड है. नंबर 2, NTES, जो पब्लिक यूज करती है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, जनरल पब्लिक फॉर इंक्वायरी पर्पज, उससे इंटीग्रेटेड है. नंबर 3, PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही पुराना मॉड्यूल है. आप जानते हैं हम लोग पूरा रिजर्वेशन सब ऑनलाइन होता है, और विंडो में जाते हो तो वो भी कंप्यूटर सिस्टम से ही होता है. सो दैट PRS इज आल्सो इंटीग्रेटेड विथ ICMS. नंबर 4, फास्ट पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Freight Operation Information System is also integrated with ICMS. So it is a complete picture. Okay. नंबर 5, CMM, जैसा हमने आपको बताया, कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको भी ICMS से जोड़ा गया है. देन PMS, जो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पार्सल हम लोग पैसेंजर ट्रेन में भेजते हैं, दैट इज आल्सो इंटीग्रेटेड. दैट अनदर
important system. And number 7, TMS. So train management system run by Central Railway Mumbai, जो उनकी suburban trains है और अदर ट्रेन सर्विसेज है, दैट इज आल्सो इंटीग्रेटेड विथ ICMS. एक फाइस में हमने जो देखा था TMS, दैट इज टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, वो अलग है. ये मुंबई का TMS ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम कोचिंग ट्रेन के लिए है. और वो जो TMS हम फाइस में देखते हैं, दैट इज टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम या RMS रेक मैनेजमेंट सिस्टम, वो फाइस का है, गुड्स ट्रेन के लिए है. तो दोनों TMS में थोड़ा डिफरेंस है. ये कोचिंग, वो फाइस का है, गुड्स ट्रेन का. देन पॉइंट नंबर 6. सो आगे हम वन बाय वन एक एक टॉपिक लेके स्लाइड में डिस्कस करेंगे. Various technologies are used in these modules and these are well integrated with each other and with other applications. सो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेंसेज यूज किए गए हैं, प्रोग्रामिंग पूरा, और ये आपस में सारे एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड हैं एंड दे कैन कम्युनिकेट वेल टू अचीव द गोल ऑफ रेलवे. नंबर 7, द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडियन रेलवे. ये पूरा सिस्टम फुल इंडियन रेलवे में इम्प्लीमेंटेड है, लागू किया गया है. द एप्लीकेशन हैज ए लार्ज यूजर बेस. हमारा जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, पूरा 140 करोड़ all are the users of Indian Railway. plus our managerial जो हमारा जो मैनेजमेंट है at railway board level, zonal level and divisional level and station and yard levels, all users are able to access these things, okay, as per requirement. so हम आगे देखेंगे नेक्स्ट. तो सबसे पहले शॉर्ट नोट है पाम, यानी पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग. इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रीफ में दिया गया है. सो आप लोग ध्यान से देखिए. दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शनलिटीज एंड रिपोर्ट्स फॉर मॉनिटरिंग रनिंग एंड पंक्चुअलिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन. तो एक पाम जो है एक मैनेजरियल टूल है. तो इस मॉड्यूल में जो रिपोर्ट से जनरेट होती है पंक्चुअलिटी की, वो रहेगी और उसको मॉनिटर कर सकते हैं हमारे सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स. नंबर 2, पाम ऑटोमेटिकली पिक्स अप द ट्रेन रनिंग टाइमिंग्स फ्रॉम COA. जैसे ही कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, यानी कंट्रोल ऑफिस में सेक्शन कंट्रोलर फीड करता है या डाटा लॉगर से टाइमिंग पिकअप होती है COA एप्लीकेशन में, वैसे ही COA से इमीडिएटली इट इज ट्रांसफर्ड और इट कैन बी पिक्ड अप बाय पाम. एंड ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम जो TMS मुंबई का है, दैट इज आल्सो कनेक्टेड विथ पाम एंड COA. सो सब एक दूसरे को इमीडिएट कम्युनिकेट कर देते हैं without loss of any time. It is real time monitoring. Number 3, PALM generates real time insight into the state of the operations and provides consistent and accurate reports for all level of management for analysis and managerial decisions. तो जो ये रियल टाइम का रिपोर्ट है, पोजीशन ऑफ द कोचिंग ट्रेन्स and punctuality deviation if any, these reports are readily available in the PALM for the management and for their decisions. Number 4, PALM was launched in the year 2006. 2006 में इसे लॉन्च किया गया था क्रिस के द्वारा एंड इज टुडे वन ऑफ द प्राइमरली यूज्ड एप्लीकेशन टू जनरेट ऑल इम्पॉर्टेंट and required MIS reports, management information system reports at all operating and management level. So 2006 में स्टार्ट होने के बाद आज जो है एक प्रमुख एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इंडियन रेलवे में, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स के लिए फॉर ऑपरेटिंग, यानी ट्रेन ऑपरेशन के लिए उस लेवल में यूज किया जाता है और मैनेजमेंट लेवल में भी यूज किया जा रहा है फॉर टेकिंग डिसीजन और टू इंटरफियर विथ एनी डेविएशन. नंबर 5,
At present, punctuality related activities have got shifted from manual to this system. इस समय अब जो है हमारा जो पंक्चुअलिटी है, समय पालन जो पैसेंजर ट्रेन का है, ये एक्टिविटीज पूरा मैनुअल से शिफ्ट होके कंप्यूटराइज हो चुकी है. ओके, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स are fulfilled by the system, and there is a lot of dependency and trust shown on this system by the users of all levels. हर लेवल के यूजर्स जो इसके उपभोक्ता हैं इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है और बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज क्वास. क्वास ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, but again here I have given short note for refreshing it. Coaching operation information system, because it is another module which is integrated with ICMS. ICMS के साथ integrated है, so उसके बारे में थोड़ा discussion कर देंगे. This module captures all operational activities of coaches, rakes and events of passenger low coach. सो जो पैसेंजर कोच है, रेक है और पैसेंजर लोको है, उसका कंप्लीट ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो भी हमें एज ए सुपरवाइजर, एज ए मैनेजर, आज एज ए ऑपरेटर चाहिए, वो क्वास में अवेलेबल है. क्वास वाज लॉन्च्ड इन 2006. ये भी 2006 में लॉन्च किया गया था क्रिस के द्वारा. नंबर 2, फीडिंग ऑफ रेक्स एंड कोचेज रिलेटेड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एट स्टेशन लेवल. जो कोचेज और रेक्स का जो फीडिंग है स्टेशन लेवल पे किया जाता है, और लोकोज का जो पैसेंजर लोकोज का फीडिंग डिविजनल लेवल पे किया जाता है. नंबर 3, टू हेल्प डिविजनल यूजर सम फंक्शनलिटीज ऑफ लोकेज आल्सो प्रोवाइडेड एट स्टेशन लेवल. तो डिवीजन लेवल के जो सुपरवाइजर्स है उनको हेल्प करने के लिए स्टेशन लेवल पर भी कुछ लोगों के फंक्शनलिटीज़ को इसमें प्रोवाइड किया गया है कि स्टेशन लेवल से भी वो फीड कर सकते हैं. नंबर 4, जोनल एंड डिविजनल यूजर्स ऑफ क्वास कैन आल्सो प्रॉक्सी टू स्टेशन लेवल इफ रिक्वायर्ड टू डू रिपोर्टिंग फॉर द स्टेशन. और दूसरा जो सुविधा दिया है क्वास में कि जोनल और डिवीजन लेवल के जो क्वास के यूजर्स हैं वो लोग स्टेशन लेवल का जो रिपोर्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं. नंबर 5, क्वास इज इंटीग्रेटेड विथ पाम, COA एंड FOIS एटसेट्रा. जो क्वास है, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, पाम यानी पंक्चुअलिटी जो उसका मॉड्यूल है उससे भी इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, और COA कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, और FOIS फ्रेट ऑपरेशन से भी जुड़ा हुआ है. ओके, देन नंबर 6, ऑटो डिपार्चर एंड अराइवल इज डन इन क्वास. सो वंस रिपोर्टेड इन पाम और COA. जैसे ही कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन में पैसेंजर ट्रेन्स का टाइमिंग या जो भी है डिपार्चर अराइवल रिपोर्ट किया जाते हैं, तो पाम और क्वास में इमीडिएटली ये कैप्चर हो जाता है डाटा. देन क्वास इज इंटीग्रेटेड विथ FOIS फॉर लोको स्टेटस एंड सर्विस एक्सचेंज एज ओनली पैसेंजर लोको रिपोर्टिंग अलाउड इन ICMS. क्वास जो है FOIS के साथ भी इंटीग्रेट किया हुआ है फॉर लोको स्टेटस. लोको के पर्पज को, लोको का स्टेटस जानने के लिए इसको FOIS से भी इंटीग्रेट किया गया है. एंड सर्विस एक्सचेंजेस यानी कि आपस में जो सर्विस सेवाएं हैं उनको देख सकें, उसको मॉनिटर कर सकें. क्योंकि क्वास में ओनली पैसेंजर लोको का रिपोर्टिंग है, दैट इज ओनली अलाउड इन ICMS. ICMS में सिर्फ पैसेंजर लोगों का बारे में डिटेल्स रहता है. सो FOIS से कनेक्ट करने से क्या होगा कि FOIS पीपल कैन एक्सेस द पैसेंजर लोको स्टेटस इन द क्वास सिस्टम. क्वास इज फर्दर इंटीग्रेटेड विथ मेनी अदर IT एप्लीकेशंस. और ये क्वास जो है आगे फर्दर IT एप्लीकेशंस के साथ, विभिन्न IT एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है. ओके, देन नेक्स्ट इज डाटा मॉड्यूल. जैसा कि आप लोग जानते हैं
इस मॉडर्न पीरियड में डाटा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डाटा ही सबसे ज़्यादा यूजफुल आइटम है। सो ये मॉड्यूल क्या करता है इसमें हम देखेंगे। नंबर 1, this module is designed to facilitate users for feeding all master data used in ICMS। ये जो डाटा मॉड्यूल है तो ICMS के सभी इम्पॉर्टेंट डाटा को फीड करने के लिए एक मॉड्यूल ये बनाया गया है कि दिस मॉड्यूल इज डिजाइन टू फैसिलिटेट यूजर्स फॉर फीडिंग ऑल मास्टर डाटा। सो ऑल मास्टर डाटा जो बेसिक डाटा है उसको डाटा मॉड्यूल से हम फीड करेंगे और ICMS में एप्लीकेशन में यूज होगा। लाइक ट्रेन और कोच डाटा, ट्रेन पर्टिकुलर्स और कोच का पर्टिकुलर्स and infrastructure related details etc. that will be fed in data module. Number 2, in train data user can feed all related information of trains like train definition, train schedule, master consist and train links. So इसमें यूजर क्या क्या फिट करेगा, ट्रेन की डिफिनीशन मीन्स नेम एंड नंबर, देन ट्रेन शेड्यूल, उसका डिपार्चर अराइवल जो शेड्यूल्ड है एज पर टाइम टेबल वो फीड कर सकते हैं। देन मास्टर कंसिस्ट मीन्स इसका जो टोटल कंसिस्ट है, कितना कोचेज है और किस टाइप के कोचेज हैं वो पूरा हम फीड कर सकते हैं। देन ट्रेन लिंक्स, उसके लिंक यानी कहाँ पे इसके होता है ना, सम कोचेज विल बी डिटैच्ड एंड दे विल बी अटैच्ड टू अदर train linked trains, so that all details can be fed in data module. So it is very important module. Number 3, schedule information captured in ICMS is single entry for this information and the same data is populated to COA and NTES. जब डाटा मॉड्यूल में ये हम पूरा फीड कर देंगे जो ट्रेन का पूरा इंफॉर्मेशन है, सो इट विल बी transferred to COA control office application and NTS national train इंक्वायरी सिस्टम। सो वहाँ पर भी ये पूरा कोच का पर्टिकुलर्स, टाइम टेबल्स, सब कुछ डिटेल ट्रांसफ़र हो जाएगा डाटा मॉड्यूल से और ICMS में तो है ही। नंबर 4, दिस रिड्यूसेज redundancy and mismatches of WTT or PTT timings and distance etc. इस डाटा मॉड्यूल में फीडिंग से क्या फ़ायदा हुआ कि जो मिसमैचिंग है, वर्किंग टाइम टेबल या पब्लिक टाइम टेबल का जो टाइमिंग का मिसमैच है वो दूर हो जाएगा। सेम विल बी अवेलेबल इन COA, सेम विल बी अवेलेबल इन NTES एंड सेम इज अवेलेबल थ्रू आउट द सिस्टम इंटीग्रेटेड विथ ICMS। सो कहीं पर भी कुछ मिसमैच नहीं रहेगा। अक्रॉस द एप्लीकेशंस एंड सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज, और पूरे सारे एप्लीकेशंस में एक ही टाइम रहेगा, एक ही शेड्यूल टाइम सब फॉलो करेंगे। इट विल सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, सब कुछ का बचत होगा। ओके। नंबर 5, in coach data user can feed coach details with all relevant attributes like coach number, coach type, owning railway, built year, manufacturing unit etc. So all these coach details can be fed in the data module. तो ये पूरा रिकॉर्ड रहेगा एंड थ्रू आउट ऑल द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल में सभी एप्लीकेशंस में अवेलेबल रहेगा। सो दैट इज वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। नंबर 6, स्टेशन और यार्ड लाइन्स, देयर लोकल नेम्स एंड कैपेसिटी एटसेट्रा आर कैप्चर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा। जो डाटा मॉड्यूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा है उसमें स्टेशन में कितनी लाइन है, हर लाइन का उस स्टेशन में लोकल नेम क्या है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो पूरा लेंथ, लाइन का लेंथ रहेगा, हाउ मच इट कैन एकोमोडेट, वो पूरा डिटेल्स रहेगा, आर कैप्चर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा। सो देखिए कितना यूजफुल है ये, जिससे हमारा जो सेक्शन कंट्रोलर है दे कैन टेक डिसीजंस और लाइन की पोजीशन वैकेंट है, ऑक्यूपाइड है, कैपेसिटी कितना है, वहाँ लोकल स्टेशन पे उसका नाम क्या है उस लाइन का। सो ये पूरा डिटेल आपको डाटा मॉड्यूल से फीड किया जाता है। फैसिलिटी टू अपडेट एवब मास्टर डाटा आर आल्सो अवेलेबल इन इट। डाटा मॉड्यूल में इसको कुछ अपडेट किया है, किसी स्टेशन में लाइन कैपेसिटी चेंज हुई है, देन वी कैन अपडेट आल्सो। ओके। नंबर 7,
Timely updating of master data through it is crucial for accuracy of information in this and other integrated applications and MIS reports of ICMS. So कभी भी स्टेशन लेवल या यार्ड लेवल में कोई चेंजिंग आया है तो उसको टाइमली तुरंत अपडेट करने से क्या होगा, दिस इंफॉर्मेशन विल फ्लो टू ऑल द एप्लीकेशंस और MIS रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स जो होती है वो एक्यूरेट आएगी. ओके, अंडरस्टूड. सो ये है डाटा मॉड्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट स्टेज MIS जो हम लोग बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. MIS रिपोर्ट मॉड्यूल. सो इसमें बेसिकली इट इज ए मैनेजरियल टूल और मैनेजर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है. सो इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका. MIS report module, this provides various required reports related to all modules such as, ये जो required report related to all module, हर मॉड्यूल में जो रिपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ से फीड किया जाता है, यहाँ से मॉड्यूल से जाता है. नंबर 1 मास्टर डाटा रिपोर्ट. सो जो MIS है इसमें मास्टर डाटा रिपोर्ट्स वी कैन जनरेट मास्टर डाटा रिपोर्ट्स, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोचिंग स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफ द स्टेशन यार्ड्स. नंबर 2 मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स. सो दैट रिपोर्ट्स मॉनिटरिंग मीन्स उसका जो इम्प्लीकेशन है, जो रिपोर्ट आया है तो उसमें किसका कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे फेल्योर है, कहाँ पे सक्सेस है, वो मॉनिटर कर सकते हैं. नंबर 3 यूजर परफॉर्मेंस रिपोर्ट. जो यूजर का है परफॉर्मेंस रिपोर्ट मीन्स वी कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ यूजर्स एट डिफरेंट लेवल, एट स्टेशन लेवल, divisional level, control office level and at zonal level we can monitor it. Then number 4 historical reports means monthly report, weekly report, annual report, previous year report we can generate in this report module. Then analytical reports, comparison, we can compare प्रीवियस रिपोर्ट एंड करंट रिपोर्ट. टू एनालिटिक्स एनालिसिस के लिए भी उसमें ग्राफिकल व्यू और अदर व्यूज आर अवेलेबल इन दिस मॉड्यूल. ओके. देन यूटिलिटी रिपोर्ट, क्या हमारा जो एसेट्स है उसका यूटिलाइजेशन किस तरह हुआ है, कितना परसेंट यूटिलाइजेशन हुआ है, कितना परसेंट यूटिलाइज नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी रिपोर्ट. नाउ reports are provided for all levels of ICMS users for monitoring, analysis and quick decision making. तो हर लेवल का यूजर जो ICMS का है उसको ये रिपोर्ट मॉड्यूल का एक्सेस अवेलेबल है फॉर मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग. यानी मॉनिटरिंग करना का मतलब सुपरविजन करना, एनालाइज करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और डिसीजन लेना कि क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए. The next is utility module. This module provides facility for giving feedback. So utility module में हम feedback दे सकते हैं और जो feedback है आप समझ ही सकते हैं कि जब feedback दिया जाता है satisfactory है या unsatisfactory feedback है, on that basis action can be taken, remedial action can be taken. And ICMS user management, they can add, modify or delete the user. This module provides facility for giving feedback and ICMS user management, add, modify or delete the user. मतलब यहाँ पे एक और फैसिलिटी है कि किसी यूजर को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं यूजर को, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. ओके. नेक्स्ट COA, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है, आप सब लोग जानते हैं इसको. कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन COA. जब कंट्रोल ऑफिस में पहले पेपर चार्ट चलता था तो सारा कुछ पेपर पे सेक्शन कंट्रोलर अपना चार्ट प्लॉट करते थे और उसके बाद में 2004 2005 के आसपास ये कंप्यूटराइजेशन हुआ कंट्रोल ऑफिस में.
तो उस समय COA एप्लीकेशन के द्वारा पूरा मैनुअल चार्ट निकाल के कंप्यूटराइज्ड चार्ट आ गया और सारे दूसरे जो ICMS के मॉड्यूल्स हैं सबसे उसको इंटीग्रेट कर दिया गया, सो दैट ऑल द इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल टू द सेक्शन कंट्रोलर फॉर टेकिंग द डिसीजन। सो देखेंगे इसको कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1, COA requires the controllers to enter data related to the train operations as they receive information from the stations. So normally station master, whatever he is giving the information to section controller, then section controller is feeding in the computer, and from COA the data will flow to PALM and QoS and other integrated modules of the ICMS. Okay. Here one more thing is there, that after using data loggers, so automatically timings of the stations can be captured directly from the station, like arrival and departure without manual interference. So आजकल ऑटोमेटिक भी डाटा लॉगर के थ्रू टाइमिंग इसमें COA में फीड हो सकता है, उसका भी प्रोविजन दिया गया है। देन नंबर 2, द एप्लीकेशन चार्ट्स द रनिंग ऑफ द ट्रेन। सो पहले जो मैनुअल चार्ट करते थे, अब ये जो COA एप्लीकेशन है यही चार्ट बनाता है कंप्यूटर के ऊपर, रनिंग ऑफ द ट्रेन इन ए सेक्शन एंड आल्सो जनरेट्स द एडवांस फोरकास्ट। और इसमें जो ट्रेन, जैसे सपोज करो कोई पैसेंजर ट्रेन है, तो उसका 1-2 स्टेशन का रनिंग देख के कंप्यूटर उसका फोरकास्ट भी बताता है कंप्यूटर पे चार्ट के द्वारा कि ये कब तक यहाँ सो एंड सो स्टेशन में किस टाइम में पहुँचेगी, अप्रॉक्सीमेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस फीट। Okay, also generates the advanced forecast based on various operational parameters. Number 3, अब सेक्शन का जो कासन आर्डर फीड किया है कंप्यूटर में, तो कासन आर्डर को भी कंसीडर करेगा, और जो ट्रेन की MPS है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, वो भी कंसीडर करेगा। तो जो भी पैरामीटर्स फीड किए गए हैं उसके आधार पे ये COA एप्लीकेशन कंप्यूटर पे ट्रेन का पास दिखाता है कंट्रोलर को। नंबर 3, द ट्रेन इज then virtually handed over to the adjacent divisions as per its physical movement to maintain continuous flow of information. और जैसे मान लीजिए कि एक सेक्शन से पास होकर दूसरे सेक्शन में जा रही है, दूसरे डिवीजन में ट्रेन इंटर कर रही है, तो यहाँ कंप्यूटर में जब हम उसको हैंड ओवर कर देते हैं दूसरे डिवीजन को, तो यहाँ तो हम वर्चुअल हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फिजिकल ट्रेन जा रही है, तो ये पूरा सिंक्रोनाइज मूवमेंट रहता है और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूजर्स हैं उनको पता लगता रहता है ट्रेन कहाँ पास हो रही है। मीन्स दिस वर्चुअल एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंप्यूटर इज मैचिंग विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। नंबर 4, the key features of the application include the ability of the controller to order trains. So ये जो COA एप्लीकेशन है, तो हम कंप्यूटर में ट्रेन ऑर्डरिंग कर सकते हैं, नया ट्रेन ऑर्डर कर सकते हैं, व्यू ऑल पॉसिबल रूट्स, और वो किस किस रूट से जा सकती है। सपोज करो किसी डेस्टिनेशन को जाने के लिए वाया 2 और 3 रूट्स रहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी कंप्यूटर में दिखाएगा। वी कैन डाइवर्ट और री रूट ट्रेन्स, जैसा कोई कभी होता है ना, इस रूट में एक्सीडेंट हो गया, फ्लड आ गया, तो हम ट्रेन को डाइवर्ट करते हैं, तो ये COA में हम डाइवर्ट कर सकते हैं, री रूट कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में दिया गया है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द एप्लीकेशन हैज द फैसिलिटी फॉर कैप्चरिंग एंड व्यूइंग डिटेल्स ऑफ कंसिस्ट और कंपोजिशन ऑफ द ट्रेन। तो जो हमारा रेक है वो कंसिस्ट कितने कोचेज है, कंपोजिशन कितना है, SLR कितना है, उसमें AC 3 टायर्स ये सब क्या है, और BPC उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पर्टिकुलर्स, पूरा जो डिटेल्स है कोचेज का, रेक का पूरा डिटेल रहता है। डिटेल्स ऑफ द क्रू एंड लोकोमोटिव्स, क्रू का डिटेल और लोको का डिटेल पूरा इसमें COA में कैप्चर हो जाता है। नंबर 6, रिपोर्टिंग ऑफ अनयूजुअल इवेंट्स इज इनेबल्ड थ्रू द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। सो सेक्शन कंट्रोलर कुछ अनयूजुअल रिपोर्ट्स भी इसमें COA में फीड कर सकता है और ये यूजर फ्रेंडली है। नंबर 7, देयर इज आल्सो ए चार्ट दैट शोज डिटेल्स ऑफ लाइन ऑक्यूपेंसी।
caution orders and abnormal working। तो स्टेशन में कौन सी लाइन खाली है, कौन सी लाइन ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपेंसी के लिए भी चार्ट अवेलेबल है, और सेक्शन में कौन कौन से काशन ऑर्डर है। सो इंटीग्रेटेड है सिस्टम, तो यहाँ भी काशन ऑर्डर की इंफॉर्मेशन पूरा आएगी, और कहीं पे किसी स्टेशन में एबनॉर्मल वर्किंग है, उसको फीड किया गया है, तो वो भी यहाँ COA में दिखाएगा। नंबर 8, वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू फोरकास्ट। तो जैसा कि आपको बताया कि इसमें जो कंप्यूटर में जो पूरा ऑपरेटिंग पैरामीटर्स फीड किए गए हैं, काशन ऑर्डर या जो MPS, सब कुछ देख करके कंप्यूटर जो है वो फोरकास्टिंग कर देता है कि यह ट्रेन इस रूट में जाएगी। ओके, और एक्स्ट्रापोलेट द रनिंग ऑफ ट्रेन्स व्हिच अलाउज द कंट्रोलर टू प्लान बेटर। और ये कंप्यूटर मतलब फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है जज करना या किसी चीज़ को डिसीजन देना, वो भी कर सकता है कंप्यूटर, सो दैट कंट्रोलर जो है अच्छी प्लानिंग कर सकता है रूट के बारे में कि किस पाथ में ये ट्रेन जाएगी। नंबर 9, फॉर मैनेजरियल सुपरविजन द चार्ट्स कैन बी प्रिंटेड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट structured MIS reports are also generated for managerial supervision। जो हमारे ऊपर के बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, द चार्ट्स कैन बी प्रिंटेड। सो हम इसको COA जो एप्लीकेशन है, तो चार्ट को प्रिंट आउट ले सकते हैं, रिकॉर्ड, फिजिकल रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, और फिजिकल चार्ट जो सुपरवाइजर्स है, हमारे सीनियर DOM, DRM एंड अदर ऑफिसर्स, दे कैन view the chart physically। COA has been designed to facilitate its integration with any other application। और COA का जो डिज़ाइन इस तरह से है, ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ ये इंटीग्रेटेड है, इसको फर्दर और भी एप्लीकेशंस, नए एप्लीकेशन डेवलप हुए तो उनके साथ भी इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी है। ओके, तो ये था कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। Then next is NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। इसको आप लोग एज ए पब्लिक भी हम यूज करते हैं NTES। तो ये कैसे काम करता है ऑलमोस्ट सभी लोग आप जानते होंगे, जस्ट देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है। इट इज ए सिस्टम रन बाय इंडियन रेलवे दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर्स। पैसेंजर्स के लिए बेसिकली बनाया गया है ये मॉड्यूल। फीचर्स ऑफ NTS क्या है? लाइव ट्रेन ट्रैकिंग है, प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए ट्रेन इन रियल टाइम। ट्रेन शेड्यूल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेन शेड्यूल, मीन्स पब्लिक जो टाइम टेबल है उसमें इसका अराइवल डिपार्चर क्या है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू सेव शेड्यूल्स। और हम इसमें मॉड्यूल में जो शेड्यूल्स टाइमिंग्स दिया है उसको हम सेव भी कर सकते हैं, दूसरे फोल्डर में भी रख सकते हैं। Cancelled or rescheduled and diverted trains provides information on trains that have been cancelled, rescheduled or diverted। कुछ भी ट्रेन में जो भी कैंसिल किया गया, रिशेड्यूल या डाइवर्ट किया गया, उसका इंफॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल रहता है। ट्रेन बिटवीन स्टेशन, तो NTES में सबसे बड़ा यूज तो ये है कि दो स्टेशन जहां हमें ट्रेवल करना है, उस स्टेशन का नाम डालने से कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है। मैप फीचर, इसमें मैप फीचर भी है, प्रोवाइड्स ए मैप फीचर टू हेल्प यू स्पॉट योर ट्रेन, मैप फीचर भी है। लाइव स्टेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन लाइव स्टेशन स्टेटस, किस ट्रेन कौन से स्टेशन में पास हो रही है वो हम देख सकते हैं NTES में। हाउ टू यूज NTES, यू कैन यूज NTES ऑन इंडियन रेलवे वेबसाइट और ऐप, वेबसाइट या ऐप दोनों में हम यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज थर्ड पार्टी एप्स लाइक ट्रेनमैन एंड रेल यात्री टू एक्सेस NTES इंफॉर्मेशन। ये NTES इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी जो ऐप होते हैं, ट्रेनमैन, रेल यात्री, जो बहुत सारे लोग हम लोग यूज करते हैं, उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज PRS। PRS काफ़ी पुराना मॉड्यूल है, सब लोग जानते हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। इट इज़ कंप्यूटराइज सिस्टम यूज बाय इंडियन रेलवे टू मैनेज ट्रेन टिकटिंग। जो हमारा रिजर्वेशन हम करते हैं विंडो में जाके, पूरा PRS वही है। अलाउिंग पैसेंजर्स टू बुक, कैंसिल और मॉडिफाई टिकट्स एट एनी रिजर्वेशन काउंटर अक्रॉस द कंट्री।
हम किसी भी काउंटर में जाके कहीं से कहीं की भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर बुकिंग रिजर्व सीट्स ऑन ट्रेन थ्रू ए नेटवर्क टर्मिनल्स। ओके, सो सेंट्रलाइज है पूरा प्रोग्राम, एक जगह से हर जगह के लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। नंबर 3, it is considered one of the largest online railway reservation system globally developed and maintained by CRIS। CRIS का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो PRS सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। फंक्शंस enables booking, cancellation, modification of train tickets including checking reservation status। हम अपना रिजर्वेशन स्टेटस वेटिंग लिस्ट से RAC आ गया, RAC से कंफर्म हो गया, पूरा चेक कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस कौन करता है? पैसेंजर्स कैन एक्सेस PRS फ्रॉम एनी रिजर्वेशन काउंटर नेशन वाइड। और PRS को रेलवे तो यूज कर ही रहे एम्प्लॉइज और सुपरवाइजर्स, पैसेंजर भी एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपमेंट, developed and maintained by CRIS, benefits streamlined ticket booking process, efficient utilization of train capacity। इससे ट्रेन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है, PRS के द्वारा मालूम होता है रियल टाइम में कितना सीट खाली है, कितना फुल हो गया। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन टिकट रिजर्वेशन, पहले जब मैनुअल होता था तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। अब हमको सीट नहीं दिया, बोला फुल हो गया, बाद में दूसरे आदमी को दे दिया, मैनुअल है तो पता नहीं लगेगा। बट ये ऑनलाइन रिजर्वेशन होने से क्या है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। इम्प्रूव्ड रेवेन्यू जनरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, इससे इंडियन रेलवे की आमदनी भी बढ़ी है। ओके, नेक्स्ट इज फाइस। फाइस पे भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे। फिर भी एक शॉर्ट नोट यहाँ पे कि फाइस इट इज ए कम्प्रहेंसिव IT प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय इंडियन रेलवे टू मैनेज एंड ट्रैक द मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रेन्स। फ्रेट ट्रेन का लिए ये IT प्लेटफॉर्म है, इंक्लूडिंग वैगन्स एंड लोकोमोटिव्स। वैगन, रेक, लोकोमोटिव सब कुछ इसमें है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन देयर लोकेशन and status, thereby facilitating better decision making and improving overall freight operations। So real time में पूरा status और उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है, लोकेशन मिल सकता है, तो इससे हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और उसको अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं। नंबर 3, इट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 मॉड्यूल्स। फाइस में जो 2 मेजर मॉड्यूल हैं, RMS एंड TMS, रेक मैनेजमेंट सिस्टम और टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। इट अलाउज फॉर इफिशिएंट बिलिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन रिलेटेड टू फ्रेट सर्विसेज। सो इसमें इफिशिएंट बिलिंग है, रेवेन्यू कलेक्शन है, और जो हमारे माल भाड़ा वाली गाड़ियां हैं, गुड्स ट्रेन है, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पर्पस टू स्ट्रीमलाइन फ्रेट ऑपरेशंस बाय प्रोवाइडिंग ए सिंगल प्लेटफॉर्म to monitor and manage the entire freight train movement cycle from origin to destination। So एक स्ट्रीमलाइट सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल विंडो सिस्टम है, जहाँ पे हम गुड्स ट्रेन का पूरा मूवमेंट और पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, इंक्लूडिंग जो BPC है, CNW डिपार्टमेंट का, सब कुछ यहाँ मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट RMS के बारे में दिया है। व्हाट इज RMS? ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल वैगन्स एंड रेक्स। एंड TMS क्या करता है? टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम manages operations at freight terminals including loading and unloading activities। TMS में loading, unloading activities plus other works रहते हैं। RMS में rake मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल वैगन एंड रेक्स। बेनिफिट्स, इनहांस्ड वैगन प्रोडक्टिविटी, वैगन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वैगन टर्न अराउंड इम्प्रूव हो जाएगा। नंबर 2, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस थ्रू रियल टाइम ट्रैकिंग, जो हमारे कस्टमर्स है वो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं फास्ट से, सो हमारा रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छा रहेगा। इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एक्यूरेट डाटा, और एक्यूरेसी, जो डाटा की एक्यूरेसी है उसके कारण हम डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन फ्रेट ऑपरेशंस, और ये जो गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन है, जैसे रेक लोगों का डिमांड करते हैं लोडिंग के लिए,
सो उसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्योंकि ऑटोमेटिक अलॉटमेंट सिस्टम है, किसी को मैनुअल इंटरवेंशन के बिना डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट वैगन होगा, कोचेज वैगन और रेक अलॉट होगा और लोडिंग कर सकते हैं। Integration with other system. This FOIS is integrated with other railway system like COA for seamless data flow and tracking of train movement. ये COA के साथ भी इंटीग्रेटेड है, so that जैसे ही कंट्रोल ऑफिस में कोई भी गुड्स ट्रेन का फीडिंग होगा तो FOIS में इमीडिएटली कैप्चर हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज CMM, that is कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम. ऑफ कोर्स ये CNW डिपार्टमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड है, बट जस्ट ए ब्रीफ फॉर आवर जनरल नॉलेज. It refers to a computerized software system specifically designed to manage the maintenance activities of coaches. Number 2, it allows for efficient tracking of inspections, repairs, spare parts, inventory and overall condition of carriage. जो हमारा कैरेज है, कोचेज है, तो उसका इंस्पेक्शन मीन्स जो चेकिंग होती है, POH, IOH वो हुआ कि नहीं, रिपेयर क्या हुआ, स्पेयर पार्ट्स उसके इन्वेंट्री वो भी पूरा मैनेज हो रहा है CMM में, और ओवरऑल कंडीशन ऑफ द कैरेजेस क्या है, कैरेज का ओवरऑल कंडीशन क्या है, पूरा एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस CMM. इट एम्स टू ऑप्टिमाइज देयर लाइफ स्पैन एंड रिलायबिलिटी. जब मेंटेनेंस अच्छा है, इंस्पेक्शंस अच्छे हैं, तो इससे क्या होगा, जो कोचेज का लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी. रिलायबिलिटी बाय प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल इशूज. यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है वो भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं. सेंट्रलाइज डाटा स्टोर्स ऑल कोच मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल डाटाबेस. सो CMM में पूरा मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है, इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन इंडिविजुअल कैरेज कंपोनेंट्स, मेंटेनेंस शेड्यूल्स, वर्क ऑर्डर्स एंड रिपेयर हिस्ट्री. इसका रिपेयर हिस्ट्री पूरा हम चेक कर सकते हैं. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इनेबल्स शेड्यूलिंग ऑफ रूटीन इंस्पेक्शंस and preventative maintenance tasks to catch issues before they become major problem. So जो इंस्पेक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं, सो दैट मेजर प्रॉब्लम आने से रोक सकते हैं. मिनिमाइजिंग डाउन टाइम एंड अनएक्सपेक्टेड फेल्योर्स. इससे जो अचानक फेल्योर होते हैं उसमें कमी लाई जा सकती है. ओके, देन वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, असाइनिंग एंड ट्रैकिंग वर्क ऑर्डर्स फॉर रिपेयर्स. कोई भी कोच में कुछ प्रॉब्लम है उसको हम CNW में रिपेयर के लिए भेजते हैं, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो कब पूरा हो रहा है, कितना टाइमिंग दिया है, कब वर्क स्टार्ट हो गया. ऑल डिटेल्स आर फेड इन द CMM इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन रिक्वायर्ड पार्ट्स. उसमें कौन सा पार्ट का रिक्वायरमेंट है, दैट आल्सो इज फेड एंड मॉनिटर्ड इन CMM. एस्टिमेटेड टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल टेक्नीशियंस का पर्टिकुलर भी फीड करने का प्रोविजन है. कंडीशन मॉनिटरिंग में इंटीग्रेट विथ सेंसर्स और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स टू मॉनिटर कंडीशन ऑफ की कंपोनेंट्स अलाउइंग फॉर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज. और इसको सेंसर्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है जिससे इंस्पेक्शन रिपोर्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, और जो इसके कंपोनेंट्स है कोच के उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. देन स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन CMM. ट्रैक्स अवेलेबल स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री, facilitating timely ordering and ensuring necessary components are readily available for repairs. Reporting and analysis, यो जनरेट्स रिपोर्ट्स ऑन मेंटेनेंस ट्रेंड. जो मेंटेनेंस ट्रेंड हमारा है कि जब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के लिए कोच जाता है और उसके बाद IOH POH होता है, तो उसका पूरा मेंटेनेंस ट्रेंड और उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनती है, यानी ग्राफिकल रिपोर्ट भी रहता है. एंड कास्ट ब्रेकडाउन्स, और कास्ट का भी इसमें पूरा डिटेल्स आता है. टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइज मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज. इससे हम मेंटेनेंस में कुछ और भी सुधार है, स्ट्रेटजी बना सकते, प्लानिंग कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट कर सके. पूरा CMM में मिलेगा. ओके, देन parcel management system, PMS is very important for public utility.
PMS is a computerized system used by Indian Railway to automate the process of booking, tracking and handling parcels. Number 2, PMS allows for efficient management of parcel deliveries with features like online booking, barcode tracking, real-time status updates and SMS notifications to customers at each stage of delivery. तो आप लोग अगर जो पुराने लोग हैं जानते होंगे कि रेलवे में पहले पार्सल आपने बुक किया है फ्रॉम एनी सिटी टू एनी सिटी, तो कब पहुंचा, अभी हमारा कहाँ है पार्सल, कुछ पता नहीं लगता था। लेकिन अभी एसएमएस सिस्टम है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एसएमएस आएगा, उसका ट्रैकिंग बारकोड रहेगा, ट्रैकिंग रेफरेंस नंबर रहेगा कि रियल टाइम में आप इस पीएमएस के द्वारा पता कर सकते हैं कि हमारा पार्सल एट प्रेजेंट कहाँ पर है। These all accessible through dedicated website or mobile app. ये वेबसाइट से या मोबाइल ऐप के द्वारा यूजर्स भी एक्सेस कर सकते हैं पूरे। नंबर 4, PMS aims at improving customer service and operational efficiency within the parcel division. So ये कस्टमर के लिए सेवाएं और ऑपरेशनल जो हमारा संचालन की दक्षता है दोनों बढ़ाने में कार्य करेगा। ओके, देन TMS टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम पे 2 पॉइंट है छोटे छोटे। Terminal management system in railway is a computerized system designed to efficiently manage all operational aspects of a railway terminal, including the loading and unloading of goods, wagon, movement tracking, documentation and accounting. TMS aims to optimize turnaround time, जो वैगन टर्न जिसको हम बोलते हैं उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, and overall freight handling efficiency at stations, primarily implemented as part of the FOS. So TMS जो है primarily FOS से इंटीग्रेटेड है, उसी का पार्ट है, उसी का मॉड्यूल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही यूजफुल है फॉर फ्रेट ट्रेन्स। देन दिस इज द लास्ट स्लाइड, रेल सुगम मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, इसका देखिए क्या है, यूज क्या है, रेल सुगम मोबाइल ऐप। एन ऐप फॉर इंडियन रेलवे फ्रेट कस्टमर्स, ये जो हमारे गुड्स ट्रेन के कस्टमर्स हैं, माल भाड़ा के कस्टमर्स है, ऑफरिंग मिरियाड ऑफ फीचर्स, उसका मतलब मिरियाड का मतलब बहुत ज़्यादा उसके फीचर्स हैं। नंबर 1, कंसाइनमेंट ट्रैक एंड ट्रेस, यानी वो लोग जो बल्क में बुकिंग करते हैं तो उनका कंसाइनमेंट का ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब पुराने ज़माने की तरह नहीं है कि हमने गुड्स ट्रेन में जो रेक बुक किया उन्होंने, या मिनी रेक बुक किया, या कोई वैगन बुक किया, आइटम जा रहा है तो उनको पता ही नहीं लगता था हमारा कंसाइनमेंट कहाँ है, तो पूरा रिकॉर्ड इस मोबाइल ऐप से मिलेगा। बुकिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्रेट कैलकुलेटर, इसमें फ्रेट माल भाड़ा वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस जगह से उस जगह जाने के लिए कितना माल भाड़ा लगेगा। टर्मिनल डिटेल, टर्मिनल जहाँ पे अनलोडिंग होना है, लोडिंग होना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी इंफॉर्मेशन, जो इंडेंट से डिमांड है उसमें आउटस्टैंडिंग कौन सा है और मैच्योरिटी इंफॉर्मेशन मतलब कब पूरा हो रहा है। ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, जो ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सो एंड सो लाइन में कुछ प्रॉब्लम है सो उधर से ट्रेन नहीं जा सकता, वो भी डिटेल्स रहेगा। और कोई अगर जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई कमोडिटी का मूवमेंट में गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो अभी उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एंड मेनी मोर, और ये जो परफॉर्मेंस का मतलब कितने टाइम में पहुंचा हमारा कंसाइनमेंट और कितने टाइम डिले हुआ, वो पूरा रिपोर्ट मिलेगा। द ऐप इज अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS, यानी एप्पल फ़ोन और जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है दोनों में अवेलेबल है कस्टमर्स थ्रू रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर्स। App also provides contact detail by key nodal officers for customer concern, और ऐप में जो नोडल ऑफिसर से हमारे की ऑफिसर से जो लोग किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, आई फील, मुझे विश्वास है कि आपको
पूरा जो नॉलेज है यूजफुल होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप अवश्य पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and kindly subscribe to the YouTube channel if already not subscribed, and please share these videos with your friends and WhatsApp groups for the benefit of larger group. Thank you so much.